Let's start with a mixture of two weak monoprotic acids. Start writing. So let HX and H5 be two weak monoprotic acids. Weak monoprotic. Since they're weak, we will write dissociation constants of HX and H5. Let Ka1 be the dissociation constant of HX, and let Ka2 be the dissociation constant of H5. So both are weak, both are monoprotic. Monoprotic means N factor is 1. Let C1 be the initial molarity of Hx and C2 be the initial molarity of H5. So when you take the solution, that is when you prepare the solution, you dissolve some amount of Hx and then you dissolve some amount of H5 in some volume. So that is how you get C1 and C2, that is molarities. Sir, can you scroll up? Okay, so if I want to find out the concentration of H plus ions in the mixture, this is the formula. Square root of C1K1 plus C2K2. This is the concentration of H plus ions. And then we can find out the value of pH
as pH is minus log of H plus. So once you know the value of concentration of H plus ions, you can calculate the value of pH. So you need to learn this formula for concentration of H plus ions in the mixture. Okay, now certain points you have to know. K1 upon K2 is equal to alpha 1 by alpha 2 for this particular derivation. And this for this case where you have a mixture of two weak monoprotic acids. K1 upon K2 is alpha 1 by alpha 2. So what is alpha 1? Alpha 1 is the degree of dissociation of HX. Alpha 2 is the degree of ionization of H5. Because we have two acids in the mixture. Next formula is this. For finding out concentration of H plus ions, you can use this formula as well. Dissociation is also called ionization. So either you say dissociation constant or you say ionization constant. Similarly, alpha can be called degree of dissociation or degree of ionization in this.
Alpha 1 can be found out using this formula, Ka1 upon H plus. And H plus is nothing but this. This entire thing is H plus. Similarly, alpha 2 can be calculated using Ka2 upon H plus. So all these are for a mixture of two weak monoprotic acids. Okay, next case. Mixture of a weak monoprotic acid and a strong acid. So you have two components in the mixture. One is weak monoprotic acid and the other one is a strong acid. Let the weak monoprotic acid be HX. So in general, I'm calling the weak monoprotic acid as HX. It could be any weak monoprotic acid like HCOOH, CH3COOH, and so on. Now, a strong acid will dissociate completely. Let the H plus ions coming from strong acid be X moles per liter. So this is X is what? This X is only coming from the strong acid. So we have X moles per liter of H plus ions coming only from the strong acid. I've called K as dissociation constant of Hx. Okay, now tell me what I should do with K. How should I write K?
How should we write K? What is the expression for K? Sir, we can first find the concentration of H plus. What is that? Sir, it would be C alpha plus X. Yes, correct. That means when I'm talking about Ka, I have to talk about that weak acid whose Ka is to be written. Now here the weak acid is HX. So HX needs to be dissociated. When I'm showing the dissociation of HX, then only I can write Ka for HX because Ka is called dissociation constant of HX. How will HX dissociate? HX will dissociate in this way, where C is the initial concentration of HX. Alpha is the degree of dissociation of HX. So HX is a weak acid, and hence it can be shown in this manner. Now also we know that in the solution we have total H plus ions that needs to be considered. I cannot say that H plus is coming only from HX because H plus is coming from a strong acid as well. There is a strong acid in the mixture. I've assumed that the concentration of H plus ions coming from strong acid is X moles per liter. That means the total concentration of H plus ions becomes equal to X plus the concentration of H plus ions coming from the weak acid. So X is nothing but concentration of H plus ions coming from strong acid. And in addition to that, I also have something coming from the weak acid. So ये जो H plus दिख रहा है आपको, इस H plus के नीचे मुझे total H plus लिखना पड़ेगा. Total मतलब H plus coming from weak acid and also H plus coming from the strong acid. हमेशा total लिखना पड़ता है जो भी ion common होता है उसके लिए. तो X क्या है? X is coming from the strong acid. तो X तो रहेगा ही रहेगा. X के साथ कौन रहेगा? X के साथ C alpha रहेगा because this HX is also undergoing dissociation. So HX की dissociation से भी C alpha moles per liter of H plus will be obtained. So this is the concentration of every species written. Alpha is the degree of dissociation of HX. And the total H plus ions coming from HX is C alpha. And the total H plus ions present in the solution is C alpha plus X because X is also coming out from the strong acid. Now I can write Ka. This K. सर x को अकाउंट में लेंगे C माइनस सी अल्फा माइनस हाँ जो हमने HX लिखा है तो C माइनस सी अल्फा माइनस x नहीं होगा. बट X वहां से नहीं आ रहा है ना, X तो स्ट्रॉन्ग एसिड से आ रहा है. ये HX तो वीक एसिड है ना. This X is coming from strong acid जो है सॉल्यूशन के अंदर. ये स्ट्रॉन्ग एसिड X मोल्स पर लीटर दे रहा है. ओके तो सर स्ट्रॉन्ग एसिड पूरा डिसोसिएट होता है. हाँ, स्ट्रॉन्ग एसिड हमेशा पूरा डिसोसिएट होता है. स्ट्रॉन्ग एसिड भी स्ट्रॉन्ग बेस भी. So Ka can be written in this manner. Now put the values.
ऐसा हो जाएगा K का एक्सप्रेशन। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे? हाउ डू वी सिंप्लीफाई दिस नाउ? सर वो अप्रोक्सीमेशन से हाँ, so what is the approximation? alpha is very less. Yes, so Denominator would become 1. राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको अगर ली शैटलर्स प्रिंसिपल में याद दिलाऊं तो ये हो रहा है कि ये तो HX वीक एसिड है, अब जितना ये आना था अगर ये अकेला होता तो आता, अगर अकेला मतलब सिर्फ पानी के साथ अगर HX होता तो अच्छे से मानो कुछ आता H प्लस, लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है, इसके साथ अभी कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है, दैट स्ट्रॉन्ग एसिड is also giving H plus. If I'm taking the example of strong acid as HCl, then this is what will happen. अब ये यहाँ से भी आ रहा है, ये यहाँ से भी आ रहा है, तो क्या हो गया, कॉमन आयन हो गया। कॉमन आयन मतलब क्या, प्रोडक्ट साइड पे H plus का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, सो व्हाट शुड हैपन, बैकवर्ड जाना चाहिए। बैकवर्ड चला जाएगा। HX का जो रिएक्शन है डिसोसिएशन का वो बैकवर्ड की ओर ज्यादा ड्रिफ्टेड होगा। क्यों ऐसा? बिकॉज कॉमन आयन आ गया, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो रिएक्शन बैकवर्ड जाता है। H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ गया सॉल्यूशन में क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड ने भी अपना H प्लस छोड़ा। एज अ रिजल्ट दैट इक्विलिब्रियम ऑफ HX इज शिफ्टेड टुवर्ड्स द बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर बैकवर्ड की ओर चला गया तो कैन आई से वो डिसोसिएशन कम हो गया HX का। अगर डिसोसिएशन कम हो गया तो अल्फा की वैल्यू और भी कम, बिकॉज अल्फा इज नथिंग बट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जितना ज्यादा डिसोसिएट करेगी कोई चीज उतना ज्यादा अल्फा का वैल्यू होता है। तो इक्विलिब्रियम जितना आगे की ओर जाएगा उतना अल्फा का वैल्यू ज्यादा होगा, लेकिन अगर इक्विलिब्रियम पीछे की ओर जाना चालू करेगा तो अल्फा का वैल्यू कम हो जाएगा, जैसे इस केस में हो रहा है। So this is in accordance with the Le Chatelier's principle. तो अल्फा का वैल्यू क्यों कम हो रहा है? क्योंकि कॉमन आयन है प्रोडक्ट साइड पे, तो अल्फा का वैल्यू कम हो गया, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड की ओर चला गया HX का। तो आई कैन से दिस, सिंस अल्फा इज लेस देन 1 ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, इसको बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। Therefore 1 minus alpha is approximately equal to 1. Therefore K is equal to, सर yes, सो न्यूमरेटर में अगर हम ओपन करेंगे तो सी अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स हो जाएगा, तो सी अल्फा स्क्वायर भी तो बहुत छोटा हो जाएगा ना, तो फिर हम उसको अप्रोक्सीमेशन में यूज करेंगे। कर सकते हैं, बट आई एम नॉट डूइंग इट राइट नाउ। You are saying that उसको तुम इग्नोर करके सिर्फ x अल्फा बोल दोगे, that's what you are saying, right? हाँ हाँ हाँ, that will depend on the value. Yes, we can do that. ओके सर। तो ये 1 माइनस अल्फा को हटा दिया, हट गया। क्यों हट गया? Because alpha is much less than 1 due to common ion effect, and 1 minus alpha approximately becomes equal to 1. So I can write Ka equal to C alpha plus x whole bracket multiplied by alpha. Right. All right. तो यही चीज वापस मैंने लिखी है यहाँ पे, कॉमन आयन इफेक्ट का फुल ये क्या बोलते हैं स्टेटमेंट, explanation. The presence of any strong acid in an aqueous solution of weak acid suppresses
What is the meaning of suppresses? Suppresses means what? Reduces. Yeah, so आप एक मिनट ऊपर का रिएक्शन होगा K का ये एक्सप्रेशन है H प्लस इंटू एक्स माइनस अपॉन एच एक्स, तो ये एक एक करके लिखा है आपने, वो वैल्यूज मैंने ही डाल दिए अंदर, और जो कॉमन चीजें है वो कैंसिल आउट हो गई, एक ही चीज कॉमन है, दैट इज C, तो C कैन बी कैंसिल्ड आउट. Okay, done. अब मैंने 1 माइनस अल्फा को 1 लिख दिया है. The presence of any strong acid in an aqueous solution of weak acid suppresses the ionization of the weak acid, and therefore alpha becomes much lesser than expected. So this is nothing but an application of common ion effect, which is nothing but based on Le Chatelier's principle. Okay, another point for numericals is this. If we have a diprotic weak acid along with a strong acid, then we have to treat the diprotic weak acid just like a monoprotic weak acid. Means what? If we have a mixture of a diprotic weak acid and a strong acid, then the diprotic weak acid will be considered similar to a monoprotic weak acid. So for numericals, we will have to take this assumption in order to simplify our calculations. Diprotic weak acid will be considered similar to the monoprotic weak acid. And so we will ignore the second dissociation of the diprotic weak acid. We will ignore the second dissociation of the diprotic weak acid. We will just focus on the first step of dissociation of the diprotic weak acid. That means we are considering only the first step of dissociation. So we can do this because the presence of any strong acid will, as it is, lower the value of alpha. So it will lower the value of alpha 1, and also it will lower the value of alpha 2, where alpha 1 is the degree of dissociation in the first step and alpha 2 is the degree of dissociation in the second step. So automatically, if both alpha values are getting affected, we may just focus on the first alpha value, because as it is, alpha 2 is much lesser than alpha 1. The second dissociation is always less favored as compared to the first dissociation. Sir, how is the second dissociation getting affected? Getting affected मतलब अगर फर्स्ट ही अच्छे से नहीं होगा तो सेकंड तो और भी अच्छे से नहीं होगा ना, तो सेकंड अल्फा विल बी नेग्लिजिबल. बट सर लेकिन सेकंड वाले में तो बस सी अल्फा आता है ना. नहीं, तो पहले ये पैदा होगा तो वो डिसोसिएट करेगा ना. लास्ट टाइम किया था ना हम लोगों ने, एक एक का डिसोसिएशन, H2A गिविंग H प्लस प्लस HA माइनस, देन HA माइनस अगेन गिविंग H प्लस एंड A2 माइनस. हाँ, तो वो HA माइनस पहले पैदा होगा ना फर्स्ट स्टेप में, तो ही तो HA माइनस वापस सेकंड स्टेप में डिसोसिएट करेगा.
बट सर लेकिन अगर कम पैदा हुआ लेकिन डिसोसिएशन कम ज्यादा पैदा हुआ हुआ तो मतलब ऑटोमेटिकली वो ये हो जाएगा ना, फिर उसका वैल्यू फिर हम लोग नेग्लिजिबल कंसीडर कर सकते हैं ना, अगर कम ही पैदा हो रहा है तो। हाँ ठीक है सर। These all are comparison, I mean these all are relative things. किसके कंपैरिजन में कौन बड़ा है, किसके कंपैरिजन में कौन छोटा है, that is how we have to look at it. Okay, let's solve numericals. I hope you have written down all the formulae. Otherwise, you won't be able to solve the numericals. Question number 1. Now tell me one thing. ये कौन सा केस है, क्या है सोल्यूशन के अंदर, क्या करना है हमें? सर दो मोनोप्रोटिक एसिड्स का मिक्सचर है ना? हाँ, क्या है दोनों? दोनों मोनोप्रोटिक एसिड है। दोनों मोनोप्रोटिक एसिड्स का मिक्सचर है, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं बोल सकते? सर फिर उनका कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करना है। नहीं, that is so afterwards. I'm saying what else can we conclude after looking at the question? ई दिया था ना दोनों का। एक तो बोला तुमने कि हाँ इट्स अ मिक्सचर ऑफ टू मोनोप्रोटिक एसिड्स, दूसरा क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है दूसरा? थोड़ा सा ऊपर क्वेश्चन कॉपी कर। सर दूसरा सर वो लोग का मोलैरिटीज दिए हुए ना, तो हमने पास सी आ गया। ठीक है, दैट इज ओके. I'm trying to analyze the identity of the mixture. हाँ, मोल्स इक्वल है। वो तो क्वांटिटेटिव है, मैं क्वांटिटेटिव की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि तुम मिक्सचर की आइडेंटिटी पे कमेंट करो। जैसे तुमने बोला कि हाँ दोनों मोनोप्रोटिक है, वैसा और क्या है इंफॉर्मेशन? वीक एसिड। एग्जैक्टली, दैट इज द मेन पॉइंट है। बोथ आर वीक एसिड्स, बिकॉज स्ट्रॉन्ग एसिड्स के लिए आप अलग अप्लाई करोगे कंसेप्ट, वीक के लिए आप अलग अप्लाई करोगे कंसेप्ट। तो पहले ये तो तय करना है ना आइडेंटिटी क्या है सोल्यूशन के अंदर की चीजों की। So inside the solution I have two weak monoprotic acids. That is the entire statement which I wanted to get from any of you. So HA and HB are monoprotic. अब क्यों monoprotic ये तो दिख ही गया, एक ही H plus है. HA can dissociate to give you H plus and A minus. Likewise HB can dissociate to give you 1 H plus and 1 B minus. तो इतना तो समझ में आ गया सबको कि ये monoprotic acids है दोनों के दोनों. लेकिन साथ ही साथ ये दोनों weak भी है ना. कैसे समझ में आया वीक है? क्वेश्चन में तो लिखा नहीं है कि वीक है, लेकिन हमें इसलिए समझ में आ रहा है क्योंकि Ka देके रखा है। जब भी Ka देके रखेंगे तो बाय डिफॉल्ट द एसिड्स आर वीक, और अगर Kb देके रखेंगे बाय डिफॉल्ट द बेस इज वीक। So now we have a mixture of two weak monoprotic acids. Fine. So identity is very clear. तो उसके हिसाब से फॉर्मूला लगाएंगे। Now tell me, what do you mean by mixing equal volumes? सर जितना वॉल्यूम HA का मिक्स हुआ उतना वॉल्यूम HB का मिक्स हुआ रहेगा। क्या होता है उससे, क्या होता है अल्टीमेटली क्वांटिटेटिवली क्या होता है? उससे क्या होता है? सर मोलैरिटी दिया तो फिर डिफरेंट मोल्स हो जाएंगे, कंसंट्रेशन अलग होगा। नाउ इट इज सिंपल, अगर मैं बोलूं कोई भी चीज है जिसके इक्वल वॉल्यूम्स मिक्स कर रहे हैं, तो मानो यहाँ पे आई एम सेइंग V लीटर्स, तो उसका भी V लीटर्स। अब V लीटर्स इनिशियली अगर थे तो मोल्स कितने थे? मोलारिटी इनटू लीटर्स इज मोल्स, तो 0.02 मल्टीप्लाइड बाय HA, I mean 0.02 multiplied by V will be the moles of HA. So 0.02 V will be what? Moles of HA. 0.02 V
moles of HA present in the solution. अब मैंने दोनों को मिक्स किया, V liters of HA और V liters of HB, तो मोल्स में तो कोई असर नहीं आया, मोल्स में तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो 0.02 V मोल्स ही रहने वाले हैं HA के, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन पे फर्क आएगा, बिकॉज टोटल वॉल्यूम इज नाउ V plus V which is 2V. तो क्या हुआ, क्या हुआ इससे, मोलैरिटी हाफ हो गई. एग्जैक्टली मोलैरिटी हाफ हो गई. सो व्हेनेवर यू आर मिक्सिंग इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ टू सॉल्यूशंस, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो मिक्सचर मिक्सिंग के पहले था उसका हाफ हो जाएगा आफ्टर मिक्सिंग, क्योंकि वॉल्यूम का अपने ऐड कर दिया दोनों वॉल्यूम्स को, मतलब डबल हो गया यहाँ पे V plus V2. सो मोलैरिटी विल बिकम हाफ. तो अभी मिक्सचर के अंदर हमें मोलैरिटीज अगर देखनी है तो क्या है, HA का 0.02/2 एंड HB का 0.2/2. So I can write this, weak acid है तो acid dissociation दिखा सकता हूं मैं HA का. At equilibrium I'm writing this, C1 minus C1 alpha 1 is nothing but the concentration of HA at equilibrium. और ये C1 alpha 1 क्या है, moles per liter of HA dissociated. Because C1 alpha 1 is moles per liter of HA dissociated, I will obtain C1 alpha 1 moles per liter of H plus, and also I will obtain C1 alpha 1 moles per liter of A minus. लेकिन और एक एसिड भी तो है जो HB है, तो वो भी तो डिसोसिएट करेगा. तो टोटल H प्लस क्या आ जाएगा, H प्लस फ्रॉम HA एंड H प्लस फ्रॉम HB. तो ये आ जाएगा टोटल H प्लस. यहाँ पे भी टोटल H प्लस लेंगे, लिखना तो टोटल हमेशा है कॉमन आयन का. So this is the correct expression, I mean correct concentration of every species at equilibrium. So alpha 2 is the degree of dissociation of HB, alpha 1 is the degree of dissociation of HB. अब हमारे पास C1 और C2 के वैल्यूज है. HA क्या है, अभी सॉल्यूशन में HA का कंसंट्रेशन क्या है? Yes, tell me what is the value of concentration of HA in this solution now? The moment you have mixed 0.01. 0.02/2, that is 0.01. यानी C1 का वैल्यू क्या आ गया, ये C1 का वैल्यू आ गया 0.01. What is the value of C2? C2 is nothing but the concentration of HB immediately after mixing. So what is the concentration of C2? Value of C2? 0.2/2, because equal वॉल्यूम्स को मिक्स किया है, तो 0.2/2 मतलब 0.1.
व्हाट नेक्स्ट, क्या करना चाहिए अभी इसके बाद? सर हमारे पास C है, K है, तो हम अल्फा का वैल्यू निकाल सकते हैं ना? फॉर्मूला लिखाया था ना सर आपने ऊपर? फॉर्मूला लिखाया था मैंने, एग्जैक्टली दैट इज हाउ इट इज। फॉर्मूला यूज करो, सीधा हो जाए, क्योंकि ना इसका डेरिवेशन काफी नहीं तो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। सीधा यूज करो फॉर्मूले जो लिखा दिया मैंने, हो गया। बोलो क्या करें अभी? व्हाट वाज द फॉर्मूला? सो रूट C1 K1 प्लस वो वाला फॉर्मूला। हाँ, वो क्या, किसके लिए था वो फॉर्मूला? H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। सो यूज दैट H प्लस। Yes, please solve it. ये फॉर्मूला दिया था मैंने for a mixture of two weak monoprotic acids. एक को 1 मानो, एक को 2 मानो। इसके पहले कोई फॉर्मूला था? इसके फॉर्मूले क्या था? नहीं, इसके पहले आज कुछ नहीं किया, यही तो क्या आज? नहीं सर, आज की नहीं बात कर रहा, जनरली बात कर रहा हूँ। वो तो ये था ना, जब कोई सिंगल मोनोबेसिक एसिड है एक सॉल्यूशन में, अकेला कोई वीक मोनोबेसिक एसिड है, तो उसके लिए डाला था ना। सर अगर डाइप्रोटिक वीक एसिड है तो फिर सर वो 2 स्टेप में डिसोशिएट होगा ना? करेक्ट सर, फिर उसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्या? वेरी गुड क्वेश्चन। उसके लिए क्या करना चाहिए तुम बताओगे? यूज द कॉमन सेंस एंड टेल मी। लास्ट टाइम आई टॉट यू वन क्वेश्चन ऑन डाइप्रोटिक एसिड। बताओ क्या करना चाहिए? दूसरे वाले को इग्नोर कर दो। एग्जैक्टली। तो उस केस में हमें सिर्फ और सिर्फ डाइप्रोटिक एसिड का जो फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट है उसको लेके यहाँ पे डाल देना है। So you will treat it as a monoprotic acid. Ka कितना है? 2 into 10 to the power of minus 2. Ka2 is given. That is 2 into 10 to the power of minus 10. इसका क्या आएगा? 2 into 10 to the power of minus 6 plus 2 into 10 to the power of minus 6. Four into 10 to the power of minus 6. Square root of this will be 2 into 10 to the power of minus 3. ये क्या निकाला हम लोगों ने अभी? H plus. Therefore, H plus का concentration कितना आ गया? 2 into 10 to the power of minus 3 moles per liter. pH minus log of H plus
Yes, tell me the value of this one. क्या होगा ये? 3 minus log 2 हो जाएगा 2.7. log 2 का वैल्यू आई हैव गिवन यू ऑलरेडी. फाइन. आगे क्या क्या पूछा है? क्या पूछा है? कैलकुलेट पीएच हो गया. ऑल्सो कैलकुलेट concentration of A minus ions, concentration of B minus ions, and concentration of hydroxyl ions in the solution. Fine, very quick. अब बताओ मुझे A minus का concentration क्या आएगा? ये आएगा C1 alpha 1. B minus का क्या आएगा? C2 alpha 2. तो C1 और C2 हमारे पास है. We need to find out the values of alpha 1, alpha 2. देखो मैंने फॉर्मूला देके रखा है आज alpha 1, alpha 2 के लिए भी. सर वो रूट निकल जाएगा बस C1 alpha 1 plus C2 alpha 2. Alpha 1 is equal to Ka upon C1. Ka1 upon H plus आज दिया था मैंने फॉर्मूला. This is what degree of dissociation of the first acid, that is HX, HA या HX. कितना दिया है कि 2 into 10 to the power of -4 और H plus कितना है हमारा 2 into 10 to the power of -3. फॉर्मूला डाल दो. यहाँ से अल्फा 1 कितना आया 0.1 आ गया अल्फा 1. How to derive this formula? I gave you the formula directly, right? Derive करो और मुझे फिर प्राइवेट चैट पे भेजो. That's your homework if you want to derive it. स्टार्ट ऐसे ही करना है. कैसे स्टार्ट करना है? ऐसे HA लिखो जैसे मैंने लिखा है HA अभी. HB लिखो and then you start. सर क्या डिराइव करना था? ये फॉर्मूला जो आया ना H प्लस का जो मैंने फॉर्मूला दिया है ये सब ये वाला. हाँ सर. ये वाला अगर ये डिराइव करना किसी को है तो करो और मुझे बताओ फिर चैट पे. नहीं हो रहा है आई टेल यू. ओके सर आज की क्लास के पहले जो फॉर्मूले थे वो ऑस्मोल डाइल्यूशन और वो C alpha upon 1 minus alpha square वाले थे. So we did that one. Last lecture में we did polyprotic acids के लिए. पॉलीप्रोटिक एसिड्स का पार्ट लास्ट लेक्चर में किया था तो वो देखो. अच्छा लेकिन उसमें कोई फॉर्मूला नहीं था ना. हाँ मतलब कंसेप्ट था थोड़ा अलग. हाँ वो समझा फॉर्मूला. नहीं फॉर्मूला तो नहीं था अलग से कोई. So Ka2 upon H plus alpha 2 आ जाएगा. Ka2 is given as 2 into 10 to the power of -5. अल्फा का कोई यूनिट नहीं होता है because it is a degree of dissociation, so it's a dimensionless quantity. Now ये क्यों किया हम लोगों ने? क्योंकि we need to find out the concentration of A minus. What is A minus का concentration? देखो लिखा है यहाँ पे C1 alpha 1, that is the concentration of A minus. B minus का C2 alpha 2 तो निकाल लेंगे. कितना आया C1 is 0.01. अल्फा 1 कितना है 0.1. This is the concentration of A minus ions.
एंड B माइनस के लिए क्या है C2 अल्फा 2. What is alpha 2? 0.01. और क्या पूछा है? Concentration of OH minus पूछा है. Yes. How will you find out the concentration of OH minus ions? 14 माइनस pH करके फिर लॉग में डाल देंगे. हाँ, या फिर डायरेक्टली कर दो 10 to the power of minus 14 upon H plus. Because H plus into OH minus is 10 to the power of minus 14. कितना H plus का concentration? 2 into 10 to the power of minus 3. इसको क्या लिख सकते हैं? 1/2 is 0.5. 0.5 into 10 to the power of minus 11 या फिर 5 into 10 to the power of minus 12. This is going to be the concentration of OH minus ions. Okay. Next question. Calculate pH of a mixture containing
This is the next question. Now tell me क्या है solution के अंदर? Comment on the identity of the mixture. सर दोनों एक मोनोप्रोटिक एक डाइप्रोटिक हो जाएगा, एक स्ट्रॉन्ग एक वीक हो जाएगा, तो वैसे फिर आगे बढ़ेंगे. One strong acid and one weak acid. It's one strong acid and one weak acid. That is the first thing. Right. सर One strong acid. K2 को हम इग्नोर कर देंगे और K1 Very good. और Okay. H plus में X ऐड कर देंगे बस. Okay. So pH of a mixture containing strong acid and a weak acid. Fine. HCl is a strong acid, so it will dissociate completely. Strong acid HCl से कितना H plus आएगा? 0.1 molar. 0.1. 0.1 molar H plus will come only and only from the strong acid, that is HCl. या तो आप मोलार लिखो या फिर आप ऐसे लिखो मोल्स पर लीटर. तो ये क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ HCl से आ रहा है. अब H2S is the weak acid. तो उसका भी देखेंगे. This is the first dissociation. Second dissociation will be ignored, and so we will consider only the first dissociation which is shown to you. अब इसका क्या है इक्विलिब्रियम पे? सर बट क्वेश्चन में H2 माइनस का भी कंसंट्रेशन हाँ, तो तब करें, तभी देखेंगे उसको. अभी के लिए छोड़ दो. So H2S का क्या है? 0.1 C का वैल्यू. So 0.1 minus 0.1 अल्फा. यहाँ पे H plus कितना आएगा? 0.1 अल्फा प्लस H plus का भी तो आ रहा है ना 0.1. तो 0.1 अल्फा प्लस 0.1. करेक्ट. ऐसा आएगा. और HS माइनस के नीचे कितना लिखूं? 0.1 अल्फा. एक्चुअली लिखना कैसे चाहिए? एक्चुअली लिखना ऐसे चाहिए. फॉर बेटर क्लैरिटी आई विल शो यू दैट आल्सो. तो क्या लिखना चाहिए? अल्फा 1 मान लो इसको, और भी अच्छा रहेगा. So 0.1 अल्फा 1
प्लस 0.1 प्लस जो यहां से आएगा, अब ये यहां से कितना आएगा, HS माइनस कितना यहां से आया था फर्स्ट स्टेप से 0.1 अल्फा आया था, तो 0.1 अल्फा भी डिसोसिएट करेगा, सो माइनस, ऐसा सीधा लिख देंगे ऐसा, करेक्ट, बट H प्लस इज अ कॉमन आयन, तो टोटल लेना पड़ेगा H प्लस, तो 0.1 अल्फा 1 अल्फा 2 प्लस जो स्टेप 1 में H प्लस आया था कितना 0.1 अल्फा 1 आया था, प्लस HCl से भी आया था कितना, तो वो भी आएगा, this entire thing is H plus ions in the solution, and sulfide कितना है, this is sulfide, any doubt in this? सर ऊपर वाले H प्लस में हमने अभी ऊपर वाले का भी ऐसे करना पड़ेगा, तो क्या क्या आएगा 0.1 अल्फा 1, HS माइनस के नीचे क्या लिखूं, HS माइनस इज अगेन कॉमन रेट, इसमें भी है इसमें भी है, दोनों में जो चीज है उसके लिए क्या लिखना है, सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो क्या क्या लिखना है, नीचे वाला नीचे वाला 0.1 अल्फा 1 into 1 minus alpha 2, right, this is now actual way of showing the dissociation, लेकिन मैंने क्या बोला कि अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड के प्रेजेंस में कुछ देख रहे हैं, then the dissociation is suppressed as per common ion effect, suppressed, तो वैसे भी अल्फा 1 अल्फा 2 बहुत छोटे हैं, अभी अल्फा 1 छोटा जाएगा अल्फा 2 तो और भी छोटा हो जाएगा, तो इसके लिए मैंने बोला था कि अल्फा 2 कैन बी इग्नोर्ड विद रिस्पेक्ट टू अल्फा 1, ऐसा बोला था, तो वही करेंगे, अल्फा 2 ओके, ऐसा लिख सकते हैं, सिंस क्या लिख सकते हैं, पहली बात H प्लस आयंस, H प्लस आयंस के लिए क्या लिख सकते हैं,
C alpha 1 plus 0.1 alpha 1 plus 0.1, मतलब क्या किया मैंने, ये तो 0.1 अल्फा 1 अल्फा 2 है, इसको हटा दिया क्योंकि अल्फा 2 छोटा है तो अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 और भी छोटा हो जाएगा। और HS माइनस को क्या लिख सकते हैं, अब HS माइनस क्या था हमारा, एक्चुअल HS माइनस 0.1 अल्फा 1 इंटू 1 माइनस अल्फा 2, बट अल्फा 2 बहुत छोटा है तो अप्रोक्सीमेटली 1 माइनस अल्फा 2 विल बी 1 ओनली, सो सीधा इसको ये लिख देंगे। ऐसे सब आ जाएगा, राइट। सर मतलब हमने जो पहले लिखा था वही सही था ना? क्या, कौन सा? पहले बार में जब हमने लिखा था तो हमने 0.1 अल्फा 1 अल्फा 2 डाला ही नहीं था और हाँ, भी जैसे डाला वो था। तो हाँ, बट एक्चुअली मेथोडिकली जाना चाहिए, पहले सब लिखना चाहिए और एंड में हम लोग ऐसा बोलते हैं कि ये छोटा है तो इसको इग्नोर करो, पहले लिखना चाहिए सब कुछ, बिकॉज व्हेन यू आर सॉल्विंग इट यू आल्सो शुड बी क्लियर इन योर माइंड। अभी शुरुआत है, इसके लिए सब प्रैक्टिस प्रॉपर्ली करो, मतलब प्रॉपर मेथड से लिख के एंड अल्टीमेटली यू से दैट दिस कैन बी इग्नोर्ड, दैट इज अ बेटर वे ऑफ गोइंग अहेड। नहीं तो क्या होता है, शुरुआत में अगर आप नहीं लिखोगे तो आपकी आदत बिगड़ जाएगी, तो आगे जब लिखने की जरूरत पड़ेगी तभी भी आप नहीं लिखोगे। दैट इज व्हाई इट इज बेटर टू राइट एवरीथिंग प्रॉपर्ली एंड देन टेक अप्रोक्सिमेशंस so that you avoid making mistakes in other kinds of sums when we do later. Okay, यहाँ तक हो गया पूरा। अब Ka1 H2S का उसके लिए लिखेंगे, so Ka1 value is given as 10 to the power of -7. K1 क्या होगा, only and only the first dissociation, because 1 लिखा है K1 मतलब first dissociation, ऐसा सब होगा। Let's put the values. Okay, क्या है H plus? डायरेक्टली नहीं लिख सकते क्या? C alpha plus X into alpha. हाँ, I'm showing it. H plus, as I said, proper method से करो। तो H plus कितना आएगा? H plus is 0.1 alpha 1 plus 0.1. 0.1 alpha 1 plus 0.1 into HS minus. HS minus कितना है? 0.1 alpha. 0.1 alpha upon H2S कितना है? 0.1 minus 0.1 alpha 1. Okay, again due to common ion effect, शुरुआत ही इसके लिए थोड़े ज्यादा स्टेप्स दिखा रहे हैं। Once you are confident enough, you can omit steps in between.
अगर अल्फा 1 बहुत छोटा है तो 0.1 प्लस 0.1 अल्फा 1 क्या होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली? ऐसा होना चाहिए। करेक्ट हो गया यहाँ से। तो क्या बचेगा? Therefore 10 to the power of -7 0.1 अल्फा 1 प्लस 0.1 इसको क्या लिख दिया मैंने? इसको सीधा मैंने 0.1 लिख दिया और बचेगा क्या आपका इसके बाजू में ये, मतलब क्या ये गया 1 माइनस अल्फा 1 इक्वल टू 1 हो गया ऑलमोस्ट। ये पूरी चीज के बदले में क्या लिख दिया मैंने? 0.1। Why? Because 0.1 alpha 1 will be a very small value as compared to 0.1. तो उसको इग्नोर कर दिया पूरा, वही लिखा है यहाँ पे। यहाँ से अल्फा 1 का वैल्यू आ जाएगा। अब देखो अल्फा 1 कितना छोटा आ रहा है, देखो थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं यहाँ से अल्फा 1 आ गया। सर। उसको हम लोग 0.1 अल्फा 1 प्लस 0.1 अल्फा 1 स्क्वायर भी लेके बोल सकते हैं ना कि अल्फा 1 स्क्वायर बहुत छोटा है तो उसको इग्नोर कर देते हैं। हाँ वैसे भी कर, इस ब्रैकेट को खोल के बोल रहे हो ना इस चीज को। हाँ सर। हाँ 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 सेम थिंग, वैसे भी कर सकते। तो अल्फा 1 का वैल्यू आ गया। अब क्या निकालने बोला है? फाइंड आउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयंस। अब सल्फाइड कहां से आएगा? वो तो सेकंड स्टेप से आ रहा है, तो सेकंड स्टेप को देखेंगे सिर्फ तब। या आपके पास सल्फाइड आयंस है आपका ये? अच्छा उसके पहले पीएच ही बोला है, सही पीएच H प्लस। क्या है H प्लस? पहले लिख दिया हम लोगों ने, दिस इज H प्लस। अगेन दिस इज नथिंग बट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.1। क्या है H प्लस? ऐसा है ना H तो प्लस। इसमें हमें कब अप्रोक्सीमेशन करना था क्योंकि हम तो हर ही जगह कर रहे हैं। हाँ तो जिस अल्फा अगर बहुत छोटा है तो हर जगह कर सकते हो ना। पहले अप्रोक्सीमेशन करके देखना है कि अल्फा का वैल्यू क्या आ रहा है। जैसे अभी देख लिया हमने, कितना आया? 10 to the power of -6 आया, बहुत छोटा है, तो मतलब हमारा अप्रोक्सीमेशन सही है, ऐसा है। First to do the approximation and then see what value of alpha you get. इससे क्या आएगा अभी? 0.1 into 10 to the power of -6 plus 0.1 मतलब 10 to the power of -7 plus 0.1. Now this is approximately same as 0.1. 0.1 plus 10 to the power of -7 करोगे तो 0.1 ही आएगा ना। 0.100000000 ऐसा आएगा कुछ। ये देखो ये एडिशन का जो वैल्यू है दिस इज नथिंग बट अप्रोक्सीमेटली 0.1। सर फिर ऐसे देखेंगे तो फिर बस स्ट्रॉन्ग एसेट्स आया पूरा H प्लस। हाँ करेक्ट, दैट इज व्हाई आई सेड द प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड सप्रेसेस द आयनाइजेशन ऑफ वीक एसिड। H प्लस फ्रॉम HCl इतना आ गया कि उसने इसको डिसोसिएट होने का बहुत कम कर दिया, तो आया ही नहीं ऑलमोस्ट कुछ वहां से, नेग्लिजिबल आया, मतलब आया बट प्रैक्टिकली नेग्लिजिबल, थियोरेटिकली इट इज सम वैल्यू। दैट इज द कॉमन आयन इफेक्ट ना।
Therefore, pH is equal to 1. pH आ गया, pH पूछा था क्वेश्चन में. अब क्या सल्फाडेंस. सल्फाडेंस के लिए क्या करेंगे? Let's go back to the dissociation where sulfide is formed. This is where sulfide is formed. This is where तो जीरो हो sulfide is जाएगा formed. ना अगर अल्फा. हाँ, but you cannot write the answer as 0 ना. अभी तुमको निकाल के दिखाना पड़ेगा, कितना भी छोटा हो ना, कॉन्सेंट्रेशन को कभी 0 नहीं लिखना है. It is practically 0 but theoretically not 0. कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा ना, राइट? कुछ ना कुछ वैल्यू तो आएगा. ओके, लेट्स कंसीडर दिस नाउ. उससे आ जाएगा. I'll again write the dissociation. So HS minus वापस मैं लिख रहा हूं वही चीज. क्या है? ऐसा लिखा था. एंड H प्लस के बदले में क्या लिख देंगे? अभी H प्लस तो हमारे पास आ ही गया ना. कितना H प्लस है? जो आ गया उसको वैसे का वैसे डाल देंगे. सो Ka2 this is the value of Ka2, expression for Ka2. सर तो इसमें एचएस माइनस में अप्रोक्सीमेशन लेंगे कि नहीं लेंगे? हाँ लेंगे ना, क्यों नहीं लेंगे? लेंगे. K2 का वैल्यू is given as 10 to the power of minus 14. H plus is 0.1. Right. H plus 0.1. सल्फाइड का डालो. C alpha 1 alpha 2 और HS माइनस का कितना है? C alpha 1 into 1 minus alpha. C alpha 1 1 minus alpha. Approximation लेंगे. That is alpha 2 is less than 1. 1 minus alpha 2 is approximately equal to 1. ऐसा आ जाएगा. ऐसा अल्फा 2 आ जाएगा. Since कितना छोटा देखो वैल्यू आ रहा है अल्फा 2 का. एंड फाइनली कितना है सल्फेट का भी? C alpha 1 alpha 2 हो गया. डाल दो वैल्यू. तो प्रैक्टिकली वो 0 के जैसे ही दिखेगा बट थियोरेटिकली वी हैव टू राइट द एग्जैक्ट वैल्यू. अल्फा 1 का वैल्यू कितना आया था? 10 to the power of minus 6. अल्फा 2 का वैल्यू कितना आया? 10 to the power of minus 13.
कितना नहीं ये वाली -13 -6 इज -19 -20 एग्जैक्टली। तो देखो कितना छोटा वैल्यू है। So this is the answer. तो क्वेश्चन में वही पूछा था, एक तो पीएच पूछा था और एक सल्फेट का पूछा था। ओके, थैंक यू। सर बस एक जनरल डाउट था सर, किसी एसिड का पीएच नेगेटिव हो सकता है? हाँ, हो तो सकता है, वैसे मैथमेटिकली तो हो सब कुछ सकता है। 14 से ग्रेटर हो सकता है पीएच वैल्यू, पीएच कैन बी नेगेटिव, बट ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आएंगे। सर आप एक बार बता दो कि कब हम लोग को एक्सक्लूड करना होता है, मतलब जब अल्फा 2 बहुत छोटा हो तब 1 माइनस अल्फा 2 को हम लोग को 1 देना है और अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 को 0 है। ओके। सो 2 थिंग्स टू बी केप्ट इन माइंड।